चलिए, all of you sit comfortably. Hands are in Namaskar Mudra. Gently close your eyes. Chant all together. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sah Viryam Karvavahi Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahi. Om Shanti Shanti Shanti. Gently open your eyes. Now we will start our research class. Okay. So my first question from all of you. मेरा पहला क्वेश्चन है कि रिसर्च होता क्या है? What is research? Anyone? यस मैम, जो खोज हो गया है उसकी पुनः खोज करना सिस्टमेटिक एवं साइंटिफिक वे से, उसे रिसर्च कहते हैं। ठीक है, और कोई डेफिनेशन? रिसर्च क्या होता है, क्यों होता है, मीनिंग क्या है रिसर्च का? कोई भी? It is creation of new knowledge from already what is existing, to explore something new on top of what is already existing. Okay. Okay. Good. Any other? See, this is not related your net class, okay? But you have to know the meaning. ये आपके नेट क्लास से रिलेटेड नहीं है, या नेट में आपसे डिफिनेशन नहीं पूछा जाता है, लेकिन आज पहला क्लास है, तो इसीलिए जो है हमारा मैं आपसे डिफिनेशन जानना चाहती हूँ कि आपको रिसर्च के बारे में पता क्या है, मतलब क्या क्या जानते हैं आप रिसर्च के बारे में, या कुछ भी नहीं पता है, या कुछ पता हो तो आप बताइए, अपने मन से ही बताइए, जरूरी नहीं हो बुकिस हो। Research means to search about any topic with collecting many information and scientific way, and to search the topic again if it is already searched. Collecting information from different criteria, different point of view. अच्छा, मुझे ये एक बात बताइए, लेट मी नो वन थिंग, क्या रिसर्च का मतलब दोबारा सर्च करना ही होता है कि मतलब नई चीजों को भी, किसी भी नई चीज की खोज करना, किसी भी नई चीज की खोज करना, ठीक है। और जो एग्जिस्टिंग है उसके ऊपर कुछ नया ये करना, वो भी रिसर्च होता है। अच्छा, ठीक है। और मैम, नई चीज की खोज करना तो डिस्कवरी या सर्च होगा, और जो चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, शायद उसको कोई जानता भी नहीं है, पर फिर भी उसके बारे में खोज निकालना, वो भी रिसर्च है। और जिसके बारे में हम जानते हैं उस पे कोई भी बात हो चुकी है कि हाँ ये बात, ये चीज एग्जिस्ट करती है इस चीज के ऊपर, तो उस चीज को सिद्ध करना भी रिसर्च है। ठीक है, गुड। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि योगा में रिसर्च क्यों होना चाहिए? योगा पे रिसर्च करने की जरूरत क्या है हमें? एविडेंस चाहिए कि प्रूफ चाहिए इसके लिए। ठीक है, किस चीज की प्रूफ चाहिए? हमारे पास तो ऑलरेडी बुक्स है, इतने सारे योग बुक्स लिखे हुए हैं। इससे नहीं, nobody will be satisfied. Like when you prove it, na, people only believe when you have a definite proof. For example, if I start doing Brahmari Pranayama from 1, and after day 10 your breath holding capacity increases. We cannot just say like that. We have to see from the day 1 I had my whatever the breath I used to take, this was the duration. Then day 10, how long I am able to. So with measurements, if you show it, then only the people are convinced. Only with scriptures, what is there, that is one aspect. But now, as the scientific, as this one, it asks for the evidence.
When you show the evidence, it is very clearly depicted. Okay, good, very good. Any other? Why we have to do research on yoga? Yoga पे research क्यों करना चाहिए? Basically, ma'am, whatever we are getting from the yogic text, the ancient, they're written they're very dated actually. So to Okay. prove their existential and the application in this modern life, like how it might help, and just like Sumaji said, that the evidence-based application, for the application basis, we need to do this research to prove that basically the things or the way of life can affect or can help us or not help us in a particular way. Okay. Okay. Any other? Anyone? मैम जैसे बहुत सारे ग्रंथ हैं हम्म। जो हम पढ़ रहे हैं हम्म। उसमें एक ही क्रिया को बहुत सारे वे में बताए गए हैं अलग अलग योगियों में तो उसके लिए भी रिसर्च जरूरी है प्रूफ ठीक, करने के लिए कि कौन सा क्रिया सही है सही बात है। हमारे अलग अलग जो है बुक्स में अलग अलग मतलब जो आसन भी है वो अलग अलग तरीके से बताए गए हैं। ठीक है। और देखिए इसमें आपने दो दो पॉइंट मुझे बताया है अभी तक। एक पॉइंट तो ये है कि जितने भी हमारे ग्रंथ है या जितने भी हमारे बुक है योगा बुक्स है उनको जो है हमें ये साइंटिफिकली प्रूव करना है, इसलिए हम रिसर्च करते हैं योगा में। दूसरा आपने बताया कि जो है हर मतलब जो भी हमारा योगा बुक है उसमें अलग अलग तरीके से दिया गया, मतलब अलग अलग गुरु अपने तरीके से उन्होंने अलग अलग आसनों को बताया है ना। तो इस चीज के लिए भी हमें रिसर्च करना चाहिए योगा में, ताकि हम एक जेनरिक योगा निकाल सके कि साइंटिफिकली कौन सही है ना। तो ये दो पॉइंट है। तीसरा क्या है? थर्ड पॉइंट? Ma'am, if one we do more research and then we can make people believe and give them yogic benefits, they can use, ma'am, they can benefit more from the yoga. They can believe in yoga. ओके। And actually in modern medicine like अभी जो है सबको everyone believes that by taking medicine or pill only something will be cured, the mental this thing. But when you have evidence in yoga, you prove that no, instead of medicine you can do this pranayam or you this asana regularly for such a duration, then you can also get over whatever the ailment they have, you can get over by yoga to convince people that ओके yeah. ओके ओके, करेक्ट। ओके, और भी कोई? एनीवन? अभी हमें 2-3 पॉइंट्स मिले हैं, और कोई पॉइंट्स हो अलग डिफरेंट? और मैम कोई एक चीज किसी एक ही चीज पर इफेक्ट नहीं करती है, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं, ये भी हमें इससे पता चलता है। ठीक है, गुड। ठीक है, चलिए। तो अभी तक मेरा दो क्वेश्चन था आपसे कि एक तो रिसर्च क्या होता है और दूसरा हमें योगा पे रिसर्च करने की जरूरत क्या है, या योगा में रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ने की जरूरत क्या है। ठीक है। अब मुझे ये बताइए, यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अभी तक रिसर्च नहीं पढ़ा है? मैं आपको बिल्कुल माइनस से पढ़ाऊंगी, जीरो से नहीं पढ़ाऊंगी, बिल्कुल इनिशियल से पढ़ाऊंगी। बस मैं एक बार जानना चाहती हूँ कि यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक रिसर्च पढ़ा नहीं है। हैंड रेज कीजिए अपना, जिन्होंने अभी तक रिसर्च नहीं पढ़ा है। बिल्कुल फ्रैंकली बताइएगा, मैं उस हिसाब से ही फिर आपकी क्लासेस करूंगी स्टार्ट। और कोई? ठीक है, चलिए। तो मुझे जो है, तो मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ आज से, अभी से आपका रिसर्च का। तो इतना जो है हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था। अब मुझे ये बताइए कि रिसर्च के जैसे कि आज आपका पहला क्लास है,
तो इसमें सबसे पहले क्या है कि हम सिस्टमैटिकली बोलते हैं, ठीक है, कि रिसर्च एक सिस्टमैटिक स्टडी है। कोई मुझे बता सकता है कि इसको सिस्टमैटिक क्यों 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 बोलते हैं? Why we call research methodology a systematic study? Anyone? मैम जैसे रिसर्च करने के लिए हम प्लानिंग करते हैं। हम्म एक जैसे कोई भी रिसर्च कर रहा है तो उसके लिए प्लानिंग करेंगे, फिर उसका एनालिसिस, जैसे डाटा कलेक्ट करेंगे, एनालिसिस करेंगे, ये सब चीज। ठीक है। तो इसको स्टेप बाय रिसर्च, स्टेप करना है, इसके लिए इट्स सिस्टमैटिक। बिल्कुल बिल्कुल। कभी भी हम रिसर्च करते हैं तो ये सबसे पहले हमारा सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें प्रॉपर प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, डेटा कलेक्शन करते हैं, मतलब पहले से हमें जो है सब कुछ करके रखना होता है। जैसे होता है ना कि हमें एक छत पे जाना है तो पहले पहला सीढ़ी चढ़ना होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, डायरेक्ट हम छत पे जा नहीं सकते। सेम उसी तरह जो है आपके रिसर्च में भी, जब भी आप रिसर्च करते हैं, चाहे वो आप थ्योरेटिकल रिसर्च कीजिए या आप जो है एम्पिरिकल रिसर्च कीजिए, कोई सा भी अगर आप रिसर्च करते हैं तो सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप जाना होता है। हम डायरेक्ट कभी भी जो है ऐसा नहीं होता कि हम डायरेक्ट अपना डेटा कलेक्शन स्टार्ट कर दिए। एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ हमें चलना होता है, इसीलिए इसको हम सिस्टमैटिक स्टडी कहते हैं रिसर्च को, ठीक है। तो ये सिस्टमैटिक कहते क्यों है? तो ये आपका है प्लानिंग है, इसमें एग्जीक्यूशन है, एनालिसिस है और डिटरमिनेशन है। प्लानिंग जो है आपका हो गया कि आपके जो भी मानिए कि अच्छा चलिए एक टॉपिक लेके चलते। पिछले क्लास में भी मैं एक टॉपिक लेके चली थी। कौन से टॉपिक पे आप लोग को करना है रिसर्च? कोई भी एक सिंपल टॉपिक ले लीजिए जिसपे हम पूरे टॉपिक पे फिर हम उसी टॉपिक पे मैं आपको डिस्कशन करके एग्जांपल देके समझाऊं। कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए अपने से आप लोग, कोई भी एक रिसर्च टॉपिक छोटा सा सिंपल सा। Yes, ma'am. Arthritis is, I think, correct. Good topic. अर्थराइटिस, हाँ हाँ, होना क्या चाहिए टॉपिक इस पे? इफेक्ट ऑफ योगा ऑन अर्थराइटिस। Yes, मैम ma'am. प्राणायाम के बारे में ले सकते मैम हैं? सूर्य नमस्कार से फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, ऐसा भी ले अच्छा सकते हैं। ठीक है, मतलब अभी जो हम एक रिसर्च टॉपिक लेंगे, मैं पूरे रिसर्च तक आपको उसी का एग्जांपल देके समझाऊंगी, इसीलिए मैं आपसे ही बोल रही हूँ कि आप एक अपना रिसर्च टॉपिक दीजिए, ताकि जितनी भी रिसर्च की हम बातें करेंगे उस टॉपिक को लेते हुए करेंगे। ये ठीक है जी, अर्थराइटिस। Yes, अर्थराइटिस, ma'am. Arthritis is the good topic actually. ठीक है, तो चलिए तो हम अपना रिसर्च टाइटल लेते हैं, इफेक्ट ऑफ योगा ऑन अर्थराइटिस, ठीक है। अर्थराइटिस सबको पता है क्या होता है? यहाँ पे कोई ऐसा हो जिसको पता नहीं हो? स्वेलिंग ऑफ द जॉइंट्स। ओके, स्वेलिंग ऑफ द जॉइंट्स। हिंदी में बोलते क्या है अर्थराइटिस को? गठिया बाय। क्या बोलते हैं? ठीक है, तो सबको पता है यहाँ पे क्या होता है अर्थराइटिस, ठीक है। यस मैम। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना जो है मैं हमारा आज का टॉपिक, मतलब ये जो है हमारा रिसर्च टॉपिक हो गया इफेक्ट ऑफ योगा ऑन अर्थराइटिस, ठीक है। तो अब ये देखिए, अब जब हम ये टॉपिक पे जब हम काम करेंगे तो हमें सबसे पहले प्लानिंग करना होगा, ठीक है। प्लानिंग में क्या होता है? प्लानिंग में ये होता है कि आपको जो भी आप एक सिनॉप्सिस तैयार करते हैं ना, या जो रिसर्च प्रपोजल बोलते हैं, ठीक है। पहले रिसर्च का सारा काम पेपर पेंसिल पे ही होता है, पेपर और पेन से ही होता है, ठीक है। हम अपने प्लानिंग करते हैं कि हम उसमें वेरिएबल्स क्या लेंगे, हम उसका जो है जो हमारा रिसर्च होगा वो एम्पिरिकल होगा, थ्योरेटिकल होगा, ठीक है। हमारे रिसर्च में सैम्पलिंग कैसी होगी, अभी हम लोग सारा पढ़ेंगे आगे, अभी बस मैं आपको बता रही हूँ। तो जब भी हम रिसर्च पे काम करते हैं, जब भी हमें रिसर्च लिखना होता है, जैसे आज आपने एक टॉपिक मुझे दिया कि इफेक्ट ऑफ योगा ऑन अर्थराइटिस, तो इफेक्ट ऑफ योगा ऑन अर्थराइटिस पे, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे कि हमें क्या क्या कौन सा सैंपल लेना है, बुजुर्ग पे करेंगे, ठीक है। आजकल अर्थराइटिस बहुतों को हो रहा है, मतलब यंग एज में भी हो रहा है ना। तो हमारा पॉपुलेशन कैसा होगा, हमारा सैंपल कैसा होगा, हम सिर्फ फीमेल्स पे करेंगे, मेल्स पे करेंगे, मतलब हमें एक जो है अपनी प्लानिंग करनी होगी प्रॉपर, कि उसमें जो है हमारे जो भी हमारे रिसर्च के मेथड्स है उसमें हम क्या क्या यूज करेंगे अपने रिसर्च में, ठीक है। तो एक प्रॉपर प्लानिंग होता है। एग्जीक्यूशन होता है कि आप अब जो है डेटा कलेक्शन कहाँ से करेंगे, है ना, एग्जीक्यूट कैसे करेंगे उसको। जैसे कि मान लीजिए कि आपको हॉस्पिटल से करना है, कोई अनाथालय से करना है, या फिर कोई कहीं सोसाइटी में गए आप वहां से कलेक्शन करना है आपको डेटा कलेक्शन, क्योंकि जिनको अर्थराइटिस है वो पेशेंट तो चाहिए ना आपको, ठीक है। और
एनालिसिस हो गया कि आपको कौन सा स्टैट्स लगाना है। स्टैट्स का मतलब है कि जब भी हम इसको हमें प्रूव करना है साइंटिफिकली, तो हमें उसमें स्टैट्स भी लगाना होगा। ठीक है, बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स आते हैं, तो वो सभी भी हम पढ़ेंगे। आज पहला क्लास है तो बस मैं आपको बता रही हूँ कि रिसर्च को सिस्टमैटिक स्टडी कहते क्यों है, क्योंकि इसमें प्रॉपर प्लानिंग होता है, एग्जीक्यूशन होता है, एनालिसिस होता है। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि मान लीजिए कि मैंने रिसर्च कर लिया, मेरा रिसर्च पूरा हो गया, मैं तो फिर मुझे वो सोसाइटी को भी तो बताना है। ठीक है, स्किल ऑफ साइंटिफिक राइटिंग मीन्स मैं उसको राइटिंग करके कि मैंने अर्थराइटिस पे योगा, मैंने ये जो है आसना दिए, ये प्राणायाम दिए, जो भी जो है यूजफुल है उनके लिए, मैं ये जो है मॉड्यूल तैयार की और मैंने अर्थराइटिस के पेशेंट को दिया और मेरा ये रिजल्ट आया कि वो सक्सेसफुल रहा। मैंने एक महीने तक योगा करवाया उनसे, और जिनके भी जितने भी अर्थराइटिस के पेशेंट थे उनको बहुत आराम मिला, उनको बहुत ज्यादा मतलब जो है, जो भी हमारे सैंपल्स थे उनको बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो ये पेपर में लिख के कि हमने क्या पाया, अगर नहीं भी योगा वर्क किया तो भी हमें लिखना है। ठीक है, तो हम जो है पेपर लिख के बताते हैं, हर रिसर्चर पेपर लिखता है और बताता है कि वो जो उसने काम किया है उसने क्या पाया, ताकि उसी टॉपिक पे कल को किसी दूसरे को करना हो तो वो पढ़ के समझ जाए कि उसमें जो है लिमिटेशन क्या थी, कौन सा आसना था जो बहुत अच्छा रहा, कौन सा था जो जिसने काम नहीं नहीं किया। ठीक है, तो हम वो पेपर पढ़ के ही, किसी भी रिसर्चर के पेपर को पढ़ के ही पता करते हैं। तो रिसर्च एक सिस्टमैटिक स्टडी है क्योंकि इसमें प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, एनालिसिस और डिटर्मिनेशन होता है। पहले ये क्वेश्चंस आते थे, बहुत दिन से इस तरह के क्वेश्चंस आ नहीं रहे, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये। ठीक है, मैम इसमें जो आपने लास्ट पॉइंट बताया, इसमें जो आप बता रहे हो वो पेपर में राइटिंग करना, तो वो हाँ। रिपोर्ट बनाना है या पब्लिशिंग से पहले का काम है, या रिपोर्ट बनाना कहते हैं उसको? नहीं नहीं, ये रिपोर्ट बनाना नहीं होता। रिपोर्ट देखिए हम सिर्फ जो है ना प्लानिंग फेज में करते हैं काम। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, सॉरी, ये देखिए, ये जो है ना रिपोर्ट आपका, जब आपका पूरा रिसर्च पूरा हो जाता है, ठीक है, जब आपका डेटा कलेक्शन, आपका जब प्लानिंग भी हो जाता है, डेटा कलेक्शन भी हो जाता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी लगाते हैं आप उसमें, उसके बाद जो है आपके पास एक रिपोर्ट जैसा ही आता है, लेकिन उसको जो है हमें पेपर लिखना होता है। पेपर लिखने का मतलब होता है, मान लीजिए मेरा रिसर्च पूरा हो गया, ठीक है, तो अब आप मेरे से पूछेंगे कि मैम आपने जो रिसर्च किया किस टॉपिक पे था, आपने क्या क्या पाया, तो आपको तो पेपर पढ़ना होगा ना उसके लिए मेरा। तो उसके लिए बहुत सारे जो है गूगल स्कॉलर है, पबमेड है, वहां पे जाकर के आपको सारे साइंटिस्ट का पेपर मिलता है। ठीक है, वो ओके पेपर मैम। लिख के, हाँ, वो पेपर लिख के बताते हैं आपको कि उन्होंने क्या क्या किया, कैसे किया। ठीक है, क्या क्या उनके लिए, मतलब वो पेपर का भी एक तरीका होता है लिखने का, वो भी मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, कि साइंटिफिक राइटिंग पेपर में जो है साइंटिफिक राइटिंग कैसे लिखते हैं। ठीक है, ठीक है मैम, वो पेपर बना के वो सबमिट करते हैं हम उसको? हाँ, वो हम जर्नल में डालते हैं। ठीक। ठीक है, फिर वो जर्नल हमारा पेपर पब्लिश करती है। ठीक है, और जब ओके वो मैम। पब्लिश हो जाता है तो फिर हमें गूगल स्कॉलर के थ्रू, उसके बाद फिर आपको पबमेड, पबमेड सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है। पबमेड के थ्रू जो भी अच्छे पेपर्स होते हैं वो पबमेड में, जितने भी अच्छे जर्नल्स होते हैं वहां पे जरूर लिस्टेड होंगे। ठीक है, तो वहां पे जाकर के हम ये देखते हैं। तो जैसे आपने अभी बताया, तो आज आप लोग एक बार सर्च कीजिएगा। अभी तो आप लोग गूगल स्कॉलर पे ही कीजिए, पबमेड नहीं बोलूंगी अभी आपको करने के लिए। ठीक है, आप लोग गूगल स्कॉलर पे सर्च कीजिएगा, कीवर्ड बनाइएगा, एक कीवर्ड बनाइएगा। कीवर्ड क्या क्या हो सकता है आपका? अभी जो हमारा टाइटल है, रिसर्च टाइटल इफेक्ट ऑफ योगा ऑन अर्थराइटिस, इसका कीवर्ड क्या क्या बन सकता है सर्च करने के लिए? arthritis, arthritis, joint pain, अर्थराइटिस, ठीक है, और joint yeah, Joint pain. ज्वाइंट गठिया, पेन। योगा नहीं हो सकता? Yes. yoga, Yoga. yoga for ठीक है, योगा ही आपका मेन कीवर्ड Yoga है। for release. अर्थराइटिस, ठीक है, योगा, उसके बाद जो आपकी पॉपुलेशन है, जिस पॉपुलेशन पे आपको काम करना है, जो आपका एज ग्रुप है ना, उस एज ग्रुप को भी आप डाल सकते हैं उसमें। ठीक है, एडल्ट पे करना है, ओल्ड पर्सन पे करना है, ठीक है, किस पे करना है। तो इस तरह से कीवर्ड बना के आप पेपर सर्च करेंगे तो सारा पेपर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ma'am, Google Scholar, we have to write Google Scholar on Google Google Scholar, Search, right? हाँ, you simply you have to type Google Scholar
Okay, and after getting the tab, you just make a keyword, and you have to search all the scientific paper related to our topic. Okay. चलिए, तो ये क्लियर है कि हम सिस्टमैटिक स्टडी क्यों है रिसर्च? ठीक है, क्योंकि इसमें प्लानिंग है, एग्जीक्यूशन है, एनालिसिस और डेजिमिनेशन है। इस यहाँ पे किसी को भी कोई दिक्कत हो इसको समझने में, कोई भी किसी को भी कुछ भी जो मैम, हाँ आपने अभी जैसे जो कीवर्ड बोला, तो कीवर्ड में जैसे ये जो टॉपिक लिया है, एक उसकी मेन हेडिंग और एज ग्रुप एंड सेक्स वगैरह, मेल फीमेल, ये सारा कुछ आता है क्या? नहीं, एक्चुअली देखिए, इसका ना फ्रेमवर्क कीवर्ड बनाने का भी तरीका होता है, वो मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, आज हम लोग बहुत सारा चीज नहीं पढ़ेंगे। जब मैं आपको जो है बताऊंगी कि इसमें जो है लिटरेचर रिव्यू कैसे करते हैं, तो वो मैं सारा कुछ बताऊंगी आपको। बस मैं आपको बोल रही हूँ कि जब भी आपके पास मोबाइल हो तो कुछ कुछ आप सर्च कीजिए, इससे आपको बहुत कुछ लगेगा पता। तो आपके पास पूछने के लिए, जानने के लिए बहुत सारा, जब मैं फिर समझाऊंगी तो आपको समझने में टाइम नहीं लगेगा फिर उस चीज को। ठीक है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगी आपको। आज पहला क्लास है, तो मैं बस ये आपको अभी छोटे छोटे तरीके से बता रही हूँ कि क्या होता है। ठीक है मैम, एक बार फिर से समझाइएगा, थोड़ा डे 1 है तो समझ में नहीं आ रहा है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है। अच्छा, सिस्टमैटिक स्टडी क्यों होता है ये मैंने आपको बताया कि सिस्टमैटिक स्टडी, रिसर्च को जो है हम सिस्टमैटिक स्टडी कहते हैं। सिस्टमैटिक स्टडी क्यों कहते हैं? अब जैसे छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए कि मैंने बच्चे को पहले पढ़ा दिया कि APPLE एप्पल होता है। ठीक है, अब बच्चे को अल्फाबेट्स ही नहीं आता है, ABCD नहीं आता है, तो क्या उसके लिए पॉसिबल है सीखना कि एप्पल मतलब सेब होता है? अगर मैं इसको सीधे एप्पल का स्पेलिंग बताऊं और अल्फाबेट्स पढ़ाऊं ही ना, तो क्या बच्चा समझ पाएगा कि एप्पल मतलब सेब होता है? नो मैम। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं कि ABC, उसको लिखते कैसे हैं, उसका सिंबल क्या होता है। उसके बाद हम स्पेलिंग पे जाते हैं ना, वर्ड पे जाते हैं, फिर छोटे छोटे वर्ड्स पे जाते हैं, फिर बड़े बड़े वर्ड्स पे जाते हैं। ठीक उसी तरह हम अपने रिसर्च पे भी करते हैं कि जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं, सबसे पहले जो है प्लानिंग होता है। प्लानिंग का क्या 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 मतलब होता है कि सबसे पहले आप पेपर पे लिखते हैं, ठीक है, कि आपको कैसे करना है अपना रिसर्च। ठीक है, जब आपका पेपर वर्क पूरा होता है, तो उसके बाद जो है आपको डिफरेंट कमिटी से उस प्लानिंग को पास करवाना होता है। डिफरेंट कमिटी का कहने का मतलब है कि एक बार आपको इथिकल कमिटी में जाना होता है। इथिकल कमिटी उस प्लानिंग को देखती है कि आपकी प्लानिंग ठीक तो है, किसी को आप नुकसान तो नहीं कर रहे, या किसी का डेटा डिस्क्लोज तो नहीं कर रहे। बहुत सारी चीजें होती है जो हमें इथिकल प्रैक्टिस को भी देखना होता है। फिर इथिकल कमिटी उस प्लानिंग को पास करती है। ठीक है, फिर उस प्लानिंग को इथिकल कमेटी पास करती है, फिर उसको हम CTRI रजिस्ट्रेशन कराते हैं। CTRI रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है, जैसे कोई भी एक मूवी बनती है ना, तो मूवी बनती है तो क्या होता है, एक नाम से दो मूवी नहीं होता है, एक ही मूवी होता है। उसी तरह जो एक रिसर्च टाइटल है, वो टाइटल का एक ही रिसर्च होगा, दो नहीं होगा। जो मेरा टाइटल है वो मेरा टाइटल है रिसर्च का, वो कोई और नहीं ले सकता है। उस पे हम रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन टाइटल मेरा नहीं होगा। टाइटल मेरा फिर वो जो है CTRI में मैंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, तो वो मेरा टाइटल जो है रजिस्टर्ड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से चीजें होती है, वो सारा पढ़ेंगे, आज पहला क्लास ही है। फिर डिफरेंट जो है बॉडी से हमारा पास होता है वो प्लानिंग। उसके बाद फिर हम फील्ड में आते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि स्कूल के बच्चे पे मेरा रिसर्च था, तो अब स्कूल के बच्चे पे था, तो फिर मैं क्या करूंगी, मैं उनसे डेटा कलेक्ट करूंगी, उनसे डेली योगा करवाऊंगी। ठीक है, एग्जीक्यूशन पे जब हम आएंगे तो हम डेटा कलेक्शन का काम करते हैं। डेटा कलेक्शन का काम करते हैं मतलब कि हम फील्ड पे जाएंगे, हम डेली स्कूल में जाएंगे। मान लीजिए कि हफ्ते में 3 दिन मुझे करवाना है योगा, तो हफ्ते में मैं 3 दिन स्कूल जाऊंगी, बच्चों से योगा करवाऊंगी। और एक ग्रुप मेरा योगा का ग्रुप होगा, और एक ग्रुप हो सकता है कि मैं कोई फिजिकल एक्सरसाइज दे दूं या कुछ भी ना दूं, जैसे वो पढ़ाई कर रहे हैं वैसे ही छोड़ दूं। ठीक है, तो वो एग्जीक्यूशन हो गया। एनालिसिस हो गया कि जो मेरे पास डेटा कलेक्शन हो गया ना, कि डिफरेंट मैंने जो टूल्स इस्तेमाल किया। जैसे मान लीजिए मैंने उनका एंजाइटी नापा योगा देने के पहले, योगा देने के बाद, उनका डिप्रेशन नापा योगा देने के पहले, योगा देने के बाद। तो मेरे पास एक जो है न्यूमेरिकल डेटा भी तो आ गया। तो उस डेटा को भी मैं देखूंगी कि योगा देने के पहले जो उनका एंजाइटी लेवल था, योगा देने के बाद घटा कि नहीं घटा।
या अर्थराइटिस का भी स्केल होगा ना, तो अर्थराइटिस में पहले जो उनको प्रॉब्लम थी योगा देने के पहले, वो योगा देने के बाद कम हुआ कि नहीं हुआ, तो उसके लिए फिर हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाता है एनालिसिस। उसके बाद फिर जो है जब हमारा सारा काम कंप्लीट हो जाता है, जब एक रिसर्चर का सारा एनालिसिस उसके सामने आ जाता है कि योगा का इफेक्ट हुआ या नहीं हुआ, उसको बताने के लिए उसे पेपर राइटिंग करना होता है, उसको जर्नल में पब्लिश कराना होता है, और उसके बाद वो पब्लिश रिसर्च ही फिर आप तक आता है, ठीक है। इसीलिए इसको सिस्टमैटिक स्टडी कहते हैं, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि पहले हम प्लानिंग करते हैं, फिर एग्जीक्यूशन करते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं, फिर डिटरमिनेशन करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए रिसर्च को हम लोग, रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ हाउ टू कंडक्ट अ रिसर्च। रिसर्च एक सिस्टमैटिक स्टडी है क्योंकि इसमें प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, एनालिसिस और डिटरमिनेशन होता है। ये हम, आप मुझे बताइए, अगर मैं बोलूं कि आप अगर मुझसे बोले कि मैडम डायरेक्ट एनालिसिस क्या पॉसिबल है, मैं प्लानिंग ना करूं, मैं एग्जीक्यूशन ना करूं, मैं डायरेक्ट एनालिसिस पॉसिबल है फिर रिसर्च में? No, नहीं है ना। तो no. सबसे पहले हमें प्लानिंग करना होता है, फिर एग्जीक्यूशन करना होता है, मतलब हम स्टेप वाइज चलते हैं, ये स्टेप फॉलो करते हैं तभी हमारा रिसर्च पूरा होता है। तो इसीलिए हम रिसर्च को सिस्टमैटिक स्टडी कहते हैं। आया समझ में? Yes, ma'am. Yes. ठीक है, चलिए मैं दूसरे पे चलती हूँ अब। देखिए, अब ये क्या है कि रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक इवोल्यूशन ऑफ एन आइडिया। सिस्टमैटिक हमने समझ लिया कि सिस्टमैटिक बोलते क्यों हैं, थ्रू अ साइंटिफिक मेथड फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। अब ये बताइए साइंटिफिक मेथड कैसे है रिसर्च? सिस्टमैटिक तो समझ में आ गया, मैंने अभी आपको समझा दिया। अब रिसर्च साइंटिफिक कैसे है? मैम क्योंकि इसमें हम कुछ वैलिड वो टूल्स वगैरह भी यूज करेंगे, सॉरी टूल्स वगैरह यूज करते हैं, और हम ऐसे कोई भी डेटा नहीं ले सकते हैं। एक जो रेंज रहती है, एक साइंटिफिक रेंज बोल सकते हैं उसे, तो क्योंकि हम वो उसमें काम करते हैं इसीलिए। ठीक है। और why research is called a scientific study? Because इसमें can बहुत you सारे consider scientific methods? Okay. मैम इसे हमें प्रूफ करके दिखाना पड़ता है कि क्या आप कर रहे हो तो। ठीक है, ठीक है, मैम जैसे डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो कौन से मेथड से कर रहे हैं, फार्मूला लगाते हैं, प्रोसेस करते हैं, वेरी गुड, तो वो ठीक है, सही है, ठीक है। तो ये इसको साइंटिफिक, हाँ, साइंटिफिक मेथड भी कहते हैं। और फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी मतलब ये सोशली रिलीवेंट भी है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछती हूँ, अगर आपको रिसर्च करना है, जैसे आपने मुझे अभी बताया कि रिसर्च टॉपिक होना चाहिए इफेक्ट ऑफ योगा ऑन आर्थराइटिस, तो अब आप बताइए कि रिसर्च आइडिया कैसा होना चाहिए। आप अगर अपना टॉपिक, बहुत सारे लोग अभी मास्टर्स कर रहे हैं, रिसर्च तो देखिए आप लोग सबको पढ़ना है, और रिसर्च से के थ्रू ही आप योगा में आगे भी जाइएगा, क्योंकि आजकल सारा कुछ रिसर्च बेस्ड है ना। तो ये कैसे, आप अगर कोई रिसर्च टॉपिक में बोलूं कि आप रिसर्च टॉपिक सोचिए, तो आप रिसर्च के लिए कैसा आइडिया होना चाहिए आपके पास? रिसर्च आइडिया मतलब कैसा टॉपिक सोचेंगे आप? एक तो जो मोस्ट कॉमन डिसीज है जो काफी ज्यादा चल रही है। ठीक है, वेरी गुड। और आपका रिसर्च आइडिया कैसा होना चाहिए? ऑथेंटिक होना चाहिए। ऑथेंटिक होना चाहिए। और मैम जो अप्लाई हो सके अंडरस्टैंड होना चाहिए, क्लियर होना Be चाहिए। realistic. ओके, गुड। और जो नया हो। नया, वेरी गुड, ठीक है, जिससे हम सोसाइटी को भी कुछ बेनिफिट हो। वेरी गुड, जिससे सोसाइटी को बेनिफिट हो, नया हो, वेरी गुड। और तो रिसर्च आइडिया का मतलब समझ में आ गया कि हमारा रिसर्च आइडिया कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो बस ये सारे पॉइंट्स भी यहाँ पे लिखे हुए हैं कि नॉवेल होना चाहिए, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला होना चाहिए, सब्सटेंशियली ऐड टू एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ साइंटिफिक लिटरेचर, डुएबल होना चाहिए, और सोशली रिलीवेंट होना चाहिए। तो रिसर्च आइडिया में क्या है आपका? नॉवेल है, नॉवेल मतलब ऑथेंटिक नया होना चाहिए, और जो बेनिफिट टू द सोसाइटी, ठीक है। एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हो, मतलब जैसे कि आपका कोविड आया, तो हमने क्या किया, कोविड पे ये वैक्सीन बना, वो भी तो एक रिसर्च ही है आपका, ठीक है। साइंटिस्ट ने जो कोविड का वैक्सीन बनाया वो भी रिसर्च के थ्रू ही बना, है ना। तो नॉवेल मतलब नया होना चाहिए,
सॉल्व द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, जो ऑलरेडी प्रॉब्लम है। जैसे आपने अर्थराइटिस लिया तो अर्थराइटिस कुछ सोच के लिया होगा, है ना। तो ये जो है सॉल्व एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, जो बहुतों को है अभी। सब्सटेंशियली ऐड टू द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ साइंटिफिक लिटरेचर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे मैंने आपने टॉपिक बताया कि इफेक्ट ऑफ योगा ऑन अर्थराइटिस, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए अगर आप सर्च करते हैं और अर्थराइटिस के ऊपर मान लीजिए 200 पेपर है, मैं गूगल स्कॉलर पे अर्थराइटिस योगा कीवर्ड बना के सर्च करती हूँ तो मेरे पास 200 पेपर आ जाते हैं, रिसर्च पेपर। तो अब मुझे वो रिसर्च नहीं करना है कि जो ऑलरेडी हुआ है, ठीक है। अब मुझे वो रिसर्च करना है कि जो अभी भी नहीं हुआ है। मतलब समझ में आ रहा है कि मान लीजिए कि बहुत सा उसमें से 90% पेपर ऐसे होंगे जिसपे ओल्ड एज पे हुआ होगा, तो फिर उस एज ग्रुप को हम लोग को टच नहीं करना है, ठीक है। उसको चेंज करना है। मान लीजिए कि एक ही आसन पे बार बार हो रहा है, ठीक है, तो हमें कोई दूसरा भी उसमें जो है टेक्स्ट बुक के थ्रू जो हमारे टेक्स्ट में लिखा है उसको, मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसमें कुछ नया ऐड करना है। जो ऑलरेडी हुआ है उसी को रिपीट नहीं करना है हम लोग को, ठीक है। डुएबल होना चाहिए। डुएबल मतलब जो हम जो रिसर्च टॉपिक लिए हैं उसको कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कि आप ऐसा टॉपिक ना उठा लें, क्योंकि रिसर्च आप किसी चीज में भी कर सकते हैं, किसी भी तरह का रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च करने का बहुत सारा तरीका है और आपको कोई रोकेगा नहीं। अगर मान लीजिए कल को आप किसी के भी टॉपिक पे करना है तो आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि तुमको ये रिसर्च कर नहीं सकती हो या रिसर्च होगा नहीं। एज अ साइंटिस्ट, ठीक है, आप किसी भी टॉपिक पे रिसर्च कर सकते हैं। अब जैसे आपने ले लिया कि मान लीजिए जो है हम लोग प्रेयर ही करते हैं, या मैंने कोई ऐसा टॉपिक ले लिया कि पृथ्वी पे भगवान है, ठीक है, तो कुछ भी ऐसा टॉपिक नहीं हो कि जो कॉन्ट्राडिक्टरी हो, ठीक है, और जो आप प्रूव ना कर पाए। क्योंकि देखिए ये साइंटिफिक स्टडी है तो इसमें जो है आपको प्रूव करना होता है ना। तो कोई भी ऐसा टॉपिक मत लीजिएगा अपने पीएचडी टॉपिक में, या कभी भी आपको रिसर्च करना हो कि जो आपने टॉपिक तो ले लिया, क्योंकि टॉपिक लेने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। आप कुछ भी कर सकते हैं, रिसर्च कैसे भी कर सकते हैं, आप इसके लिए बिल्कुल स्वतंत्र है, फ्री है, ठीक है। लेकिन टॉपिक ऐसा होना चाहिए जो आप कर पाए। आपने टॉपिक ले लिया फिर मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा देखा है कि उन्होंने टॉपिक ले लिया फिर उनसे हो ही नहीं पा रहा है, ठीक है। तो जब भी आप रिसर्च में एक प्रॉपर जो है ऑलरेडी उस फील्ड में कितने रिसर्च हुए हैं और आप क्या कर सकते हैं नया, और आपको उसके बारे में कितनी नॉलेज है, उसके हिसाब से अपने रिसर्च टॉपिक को चुने। अदरवाइज रिसर्च करने में बहुत दिक्कत आएगी आपको, ठीक है, क्योंकि रिसर्च ऑलरेडी 4-5 साल का लगता ही लगता है, 5 साल तो मिनिमम लगते ही लगते हैं, ठीक है। जब अगर आप कोई साइंटिफिक स्टडी करते हैं, इंपेरिकल रिसर्च करते हैं, तो 4-5 साल का तो टाइम मिनिमम आप मान के चलिए, ठीक है। तो ऐसा टॉपिक लीजिए जो डुएबल है, जो आप कर सकते हैं, ठीक है। सोशली रिलीवेंट क्या हुआ? सोसाइटी को जिससे कुछ बेनिफिट हो। वेरी गुड। सोशली रिलीवेंट मतलब जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं उसके लिए वो टॉपिक रिलीवेंट हो, ठीक है। तो ऐसा रिसर्च होना चाहिए। तो जब भी आप अपना रिसर्च टाइटल बनाएंगे तो ये सारी चीजें आपके रिसर्च टाइटल में होना चाहिए। कोई ऐसा जिसको ये नहीं समझ में आया हो? मैम जैसे इसमें एक वर्ड आया नोवेल, तो हाँ। उसमें बताया कि नया करना, तो जैसा अभी किसी ने बोला था कि नया तो वो डिस्कवर हुआ, तो क्या हम नई चीजों को भी, जैसे आपने भी फिर बताया कि बोल सकते हैं ना हम रिसर्च किसी बिल्कुल। नई खोज को भी? देखिए रिसर्च का ना एक कंफ्यूजन है। रिसर्च तो बहुतों को लगता है कि एक ही सर्च को जो है हम बार बार रिसर्च कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपका कोई भी अभी जैसे कि अभी आप कुछ भी सोचिए अपने दिमाग में कि मुझे ये रिसर्च करना है, और उसके बाद आप गूगल स्कॉलर में जाके कीवर्ड बना करके आप खोजिए उसको, देखिएगा ऑलरेडी उस पर रिसर्च हुआ है, ठीक है, क्योंकि पूरे दुनिया में रिसर्च हो रहा है, पूरे दुनिया का पेपर आता है उसमें, ठीक है ना। तो ये जो है नॉवेल, जो आपका जो है, आपको कोई ऐसा टॉपिक लगता है अपने लाइफ में या डे टू डे जीवन में आपको कुछ ऐसा लगता है कि इस पे रिसर्च होना चाहिए, तो उस पे भी रिसर्च होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो ऑलरेडी हुआ है उसी पे करना है। अब कोविड का वैक्सीन बना, तो कोविड के वैक्सीन के लिए तो बहुत सारे कंट्री ने फाइट किया। वैक्सीन को बनाने के लिए बहुत सारे कंट्री ने काम किया ना, लेकिन कुछ कंट्री का ही वैक्सीन, दो ही वैक्सीन था जो उस समय आया, तो वो भी रिसर्च के थ्रू ही हुआ ना आपका।
तो ऑलरेडी उस पे काम चल रहा था, कोविड आया तो उसको और मॉडिफाई किया गया, ठीक है। ओके मैम। जो कैंसर की वैक्सीन बन रही थी, वही कैंसर की वैक्सीन ही आगे जा करके आपको उसी पे काम होकर के, रिसर्च होकर के आपका फिर कोविड का वैक्सीन बना था। आप लोग पढ़िएगा, आर्टिकल पढ़िएगा, जब पेपर पढ़ेंगे ना तो आपको वो ज्यादा समझ में आएगा फिर, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा कि जब भी आजकल मोबाइल सबके हाथ में होता है, कुछ नहीं करना है, बस गूगल स्कॉलर सर्च कीजिए और अपने मन से जो भी टाइप करते हैं ना, जो भी आपको आपका इंटरेस्ट एरिया है, जिसपे भी आपको मन करता है कि नहीं मुझे इस पे रिसर्च करना है, उस टॉपिक को खोजिए। चाहे वो प्राणायाम से रिलेटेड हो, चाहे वो आसना से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, ठीक है। अगर आपको उसके बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है तो उसका पेपर भी पढ़ना अभी से स्टार्ट कीजिए, मैं आपको पूरा हेल्प करूंगी, तो फिर चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। जब मैं आपको लिटरेचर रिव्यू कराऊंगी ना, तो उस समय आपको और ज्यादा हेल्प करेगा ये चीज। तो अभी नहीं भी समझ में आ रहा है तो भी आप लोग सर्च कीजिए, सर्च करके देखिए, तो उसको इस्तेमाल करना आएगा फिर आपको कि उसको कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका रिसर्च आइडिया, मतलब जब भी अपना रिसर्च टॉपिक सोचिए तो ये सारी चीजें उसमें होनी चाहिए, तो एक अच्छा रिसर्च टॉपिक निकल के आएगा आपके पास, एक अच्छा रिसर्च आइडिया आएगा आपके पास, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। अब देखिए, ये था कि मैंने आपसे पूछा था कि रिसर्च को साइंटिफिक क्यों 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 बोलते हैं, तो ये सारे रीजन है, ऑब्जेक्टिव है, लॉजिकल है, इंपेरिकल है, रिपीटेबल है, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव है मतलब एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव पे हम काम करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक बहुत सारा ले लिया और हमने खिचड़ी नहीं बनाना अपने रिसर्च को, ठीक है। एक सर्टेन, जैसे कि इफेक्ट ऑफ योगा और अर्थराइटिस, तो अर्थराइटिस वाले पे ही काम कर रहे हैं, तो उसमें एक बिल्कुल रिसर्च जब भी हम करते हैं ना, तो उसको आप जितना जो है प्यूरिफाई करेंगे ना, मतलब जितना आप उसको जो है जैसे कि उसको जितना भी आप एक मेन पॉइंट को लेके चलेंगे वो उतना अच्छा है। लॉजिकल होना चाहिए, जो भी रिसर्च आइडिया है, आप जिस पे भी काम कर रहे हैं उसका कुछ लॉजिक होना चाहिए। ऐसे नहीं कि जो है मतलब इधर उधर से यूट्यूब देख करके और इधर उधर से आप लेते आए, उसके पीछे सेटल लॉजिक होना चाहिए। इंपेरिकल मतलब, इंपेरिकल क्या होता है? एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को ही, हाँ, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को ही हम लोग जो है इंपेरिकल रिसर्च बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से आप क्या समझते हैं? क्या हम लोग योगा में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर सकते हैं? पॉसिबल है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करना योगा में? यस मैम। यस मैम। ठीक है, मैम, पॉसिबल है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट का तो मतलब ही यही हुआ ना शायद कि तो इसको तो उसको लैब में करके करते हैं हम लोग, देखना। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को तो हम लोग लैब में करते हैं। मैम लेकिन हम जैसे किसी भी डिसीज पे काम कर रहे हैं तो हम एक तरीके से एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं ना, कि ये आसन इस बीमारी में पैदा कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट हुआ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे षटकर्म का ठीक है। देख सकते हैं कि देखिए, क्या हम लोग जो योगा में करते हैं वो हम लोग फील्ड एक्सपेरिमेंट करते हैं। फील्ड एक्सपेरिमेंटल मतलब होता है फील्ड में जाके करते हैं, क्योंकि लैब में हमें कोई केमिकल टेस्ट नहीं करना होता है। लैब एक्सपेरिमेंट में और फील्ड में फर्क होता है, ये हम पढ़ेंगे जब टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ेंगे ना हम लोग, तो उसमें पढ़ेंगे कि रिसर्च कैसा होता है और कितने कितने तरह से एक रिसर्च को हम लोग करते हैं, ठीक है। तो हम लोग फील्ड में जाके करते हैं, तो एम्पेरिकल रिसर्च हम लोग फील्ड, मतलब हम लोग फील्ड रिसर्च बोलते हैं इसको। जो हमारा एम्पेरिकल बोलिए, एक्सपेरिमेंटल बोलिए, सेम सेम थिंग है, ठीक है। रिपीटेबल, ये क्या होता है? किसी चीज के बारे में बार बार मतलब पुनः पुनः खोज करना। तो एक चीज के बारे में बार बार खोज करने की जरूरत क्या है? नहीं मैम, मैं नए नए जैसे तरीके मैंने से रिसर्च किया हाँ, और रिसर्च के बाद मेरा जो रिजल्ट आया हम्म, और बाद में वही रिसर्च किसी और ने किया तो वही रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। ये रिपीटेबल का मतलब होता है कि रिसर्च, मैम हाँ बताइए बताइए कोई मैम और? मीन्स एक्यूरेसी, हमें एक्यूरेसी लाने के लिए हम जो है रिपीट करते हैं। कभी कभी डेटा हमारा एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता है, तो इसलिए हम दोबारा से उसको करके और फिर वो एक्यूरेसी लाने के लिए हम दोबारा करते हैं। वेरी गुड, ठीक है। रिपीटेबल का मतलब ये नहीं होता है कि आप रिसर्च को मतलब बार बार, रिपीटेबल का मतलब ये होता है कि हम जितनी बार भी करें, ठीक है। अब जैसे कोविड का वैक्सीन बना,
तो वो कहीं पे भी जाए, जम्मू कश्मीर में जाए, राजस्थान में जाए, कर्नाटक में जाए, दिल्ली में जाए, कहीं पे भी जाए, उसका रिजल्ट तो सेम होना चाहिए ना। ठीक है, तो ये हुआ। तो ये साइंटिफिक मेथड क्यों, पहले हमने सिस्टमैटिक पढ़ा, ठीक है, फिर दूसरी बार हमने पढ़ा कि हमारा रिसर्च आइडिया कैसा होना चाहिए। ये है कि रिसर्च को साइंटिफिक मेथड क्यों बोलते हैं। साइंटिफिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव है, लॉजिकल है, इंपेरिकल है और रिपीटेबल है। तो अभी दो चीज हमारे पास आया, एक तो हमने पढ़ा कि रिसर्च जो है ये सिस्टमैटिक होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए, और तीसरा क्या है, सोशली रिलीवेंट। ठीक है, 3S से हम काम करते हैं कि सिस्टमैटिक, साइंटिफिक और यूजफुल टू द सोसाइटी, मतलब ये जो है सोशली रिलीवेंट। तो मैं 3S से ही काम करती हूँ कि कभी भी कोई पूछे कि रिसर्च का डिफिनेशन क्या है, तो रिसर्च का डिफिनेशन 3S से याद रखिए। कभी कभी ये आपके नेट में भी पूछते हैं कि इसमें सिस्टमैटिक होगा, साइंटिफिक होगा, क्या होगा। ठीक है, तो रिसर्च में जो है आपका सिस्टमैटिक है, साइंटिफिक है और सोशली रेलिवेंट है। ठीक है, तो ये तीन चीज है, 3S है, आप भूलेंगे नहीं इसको। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिसर्च में कल पढ़ाऊंगी आपको, आज इतना ही रहने देते हैं। इतने में आप किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। किसी को भी कोई दिक्कत हो कि डिफिनेशन नहीं समझ में आया हो, या कुछ इसमें मैं कुछ आपको बताई हूँ वो नहीं समझ में आया हो, एनीवन, इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, इफ यू वांटेड टू आस्क मी। मैम, हम रिसर्च को फिर ये भी बोल सकते हैं कि अभी तक जैसे जो पढ़ा कि प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक पहुंचने की जो प्रोसेस है वो रिसर्च है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए क्या होता है ना कि आपको जो एग्जाम में आता है बस मैं उस हिसाब से ही पढ़ा रही हूँ। ठीक है, ऐसे तो रिसर्च के बहुत सारे डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन कभी नहीं आता है, आपसे इनडायरेक्टली पूछते हैं कि अगर रिसर्च है तो इसमें साइंटिफिक होगा, इसमें सिस्टमैटिक होगा, ठीक है, सोशली रिलेवेंट होगा, क्या होगा, इंपेरिकल होगा, रिपीटेबल होगा, लॉजिकल होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, इस तरह के क्वेश्चंस देते हैं उसमें। तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो, तो इसीलिए सिंगल सिंगल वर्ड करके आपको बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि कभी भी किसी भी साइंटिस्ट का डिफिनेशन कभी भी नेट में नहीं पूछते कि ये डिफिनेशन किसने दिया है, तो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो नेट के हिसाब से पढ़ना है ना। तो इसीलिए जो है हमें जो ऐसे तो बहुत सारे हजारों डेफिनेशन है रिसर्च के, और डिफरेंट साइंटिस्ट ने दिया हुआ है, लेकिन साइंटिस्ट का दिया हुआ डेफिनेशन कभी भी पूछते नहीं है नेट में। हमेशा आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे कि रिसर्च क्या है, ऑब्जेक्टिव है, लॉजिकल है, इंपेरिकल है, रिपीटेबल है। तो ये सारे वर्ड्स अपने दिमाग में आपको रखना है कि ये सारे वर्ड्स जो है, ये सारे मतलब ये आपके रिसर्च से रिलेटेड वर्ड है। ठीक है, ओके मैम। तो इसीलिए इसमें की आइडिया है सिस्टमैटिक इवेल्युएशन, रिसर्च आइडिया, साइंटिफिक मेथड, यूजफुल टू द सोसाइटी। रिसर्च जो है आपका यही है, तो इतना ही याद रखना है हम लोग को। इससे बहुत बारी क्वेश्चन पूछते हैं कि रिसर्च क्या है, अगर किसी ने एग्जाम दिया होगा कभी, तो इस तरह के वर्ड्स होते हैं उसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए, कुछ और भी वर्ड्स दे देंगे। तो अगर आपका ऑलरेडी ये वर्ड्स पढ़ा हुआ है, आप जानते हैं, तो आपको उस समय क्वेश्चंस करने में दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, यहाँ पे जितने भी हिंदी मीडियम के, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है अभी तक? नो मैम। स्लाइड्स आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मिलेगा, मतलब मैं पढ़ा रही हूँ आपको इससे, लेकिन जो आपको स्लाइड्स मिलेंगे वो दोनों में मिलेंगे आपको। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो अभी तक में? नो मैम। तो बस आपको जो है ना रिसर्च कैसे करते हैं, खास करके जो पूरी कहानी हमको जानना है ना, हमें जो पढ़ना है वो है आपका एम्पेरिकल रिसर्च। 90% रिसर्च हम इसके बारे में ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो एम्पेरिकल रिसर्च में जो है आपको बस इतना जानिए कि दो ग्रुप होता है, एक योगा ग्रुप होता है, एक कंट्रोल ग्रुप होता है। जब भी हम एम्पेरिकल रिसर्च करते हैं, तो योगा ग्रुप में क्या होता है कि हम जितने भी जो है हमारे वेरिएबल, मतलब जितने भी जो है हमने उनसे टेस्ट लिए हैं, एक बार योगा देने के पहले, जैसे मान लीजिए कि आप जो है मैंने आप ही का बनाया ग्रुप,
ठीक है, यहाँ मान लीजिए कि 100 आप लोग बैठे हुए हैं, 100 में मैंने क्या किया 50-50 का बना दिया ग्रुप कि 50 लोग जो है योगा ग्रुप में होंगे और 50 जो है कंट्रोल ग्रुप में होंगे। तो 50 को मैं योगा दिलवाने के पहले कुछ क्वेश्चन दूंगी कि आपका हाइट क्या है, वेट क्या है, और कुछ क्वेश्चन दूंगी, जैसे कि हमारा टॉपिक अर्थराइटिस पे है तो अर्थराइटिस से रिलेटेड हम क्वेश्चनेयर देंगे उनको। ठीक है, जैसे मान लीजिए उसमें हमें कुछ साइकोलॉजिकल वेरिएबल भी नापना है कि उनका एंजाइटी क्या है, डिप्रेशन क्या है। ठीक है, तो ये सारा चीज हम जो है योगा देने के पहले लेते हैं, और फिर एक बार मान लीजिए कि 1 महीने तक हमने उनको योगा दिया, तो 1 महीने के बाद फिर से उनको योगा देने के बाद फिर से जो है उनसे सेम क्वेश्चनेयर पे फिर से हम काम करवाएंगे। ठीक है, फिर उस क्वेश्चनेयर को देखेंगे स्टैट्स के थ्रू कि उसमें कुछ इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं, उनके योगा देने से उनका एंजाइटी पे कुछ घटा कि नहीं घटा, उनके जो है उनका डिप्रेशन घटा कि नहीं घटा, उनके वेट में कुछ फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। फिर उनसे आप पूछ भी सकते हैं कि योगा करने के बाद आपको कैसा लगा। ठीक है, तो उसी दो को हम कंपेयर करते हैं। और इधर जो हमने कंट्रोल ग्रुप बनाया था उनसे भी सेम वही काम करवाते हैं, जिनको हमने योगा नहीं दिया है, जो अपने रूटीन पे ही है, जिनको हमने कुछ भी नहीं दिया है, उनसे भी सेम वही क्वेश्चनेयर भरवाते हैं, एंजाइटी का, डिप्रेशन का, वेट का, जो भी हमारा क्वेश्चनेयर आएगा इसमें। ठीक है, और उसके बाद फिर उसको जो है हम जो है मतलब ठीक उस तरह ही ट्रीट करते हैं जैसे हम लोग योगा ग्रुप को करते हैं। और फिर हम स्टैट्स के थ्रू जो है देखते हैं कि इनका क्या हुआ, मतलब जो जिन्होंने योगा नहीं किया है उनको भी कुछ फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। और फिर हम योगा और कंट्रोल दोनों के डेटा को कंपेयर करके निकालते हैं कि जिन्होंने योगा किया उस पे क्या असर हुआ और जिन्होंने कंट्रोल ग्रुप जिन्होंने नहीं किया उनका क्या असर था। तो इसको पूरा डिटेल में हम लोग को पढ़ना है। तो इंपेरिकल रिसर्च ध्यान रखिएगा कि हम कैसे करते हैं। इंपेरिकल रिसर्च ठीक ऐसे ही होता है कि जैसे मान लीजिए हम लोग कबड्डी खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं तो 2-2 ग्रुप होता है उसमें, तो बस हम योगा जब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी करते हैं तो उसमें 2-2 ग्रुप बनाते हैं। एक ग्रुप जो है योगा ग्रुप होता है, एक कंट्रोल ग्रुप होता है। ठीक है, सारे क्वेश्चनेयर भरवाते हैं उनसे योगा देने के पहले, योगा देने के बाद। कंट्रोल ग्रुप के साथ भी वैसे ही होता है, पहले दिन भरवाते हैं, फिर 1 महीने के बाद फिर से भरवाते हैं। ठीक है, फिर सारे चीज को देखते हैं, सारा डेटा एनालिसिस करते हैं, कुछ टेस्ट होता है, वो सारा टेस्ट पढ़ना है हम लोगों की, कौन सा टेस्ट कब लगाते हैं। ठीक है, तो यही सारा आपका इंपेरिकल रिसर्च में है। तो इंपेरिकल रिसर्च जो है जब भी होता है ऐसे ही होता है जैसे मैं आपको बता रही हूँ, मतलब मोटा मोटी आपको ऐसे समझना होगा। ठीक है, ताकि आपको जब मैं ये समझाऊं तो उस समय आपको समझने में दिक्कत नहीं आए। आ रहा है समझ में जो बता रही हूँ मैं? यस मैम। यस कोई ऐसा जिसको आज की क्लास नहीं समझ में आई हो या कोई दिक्कत आया हो, कोई भी हो ऐसा? आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, कोई भी हो ऐसा? मैम हम लोग इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे आप हमें टॉपिक दीजिए और मतलब जैसे ये टॉपिक है हम उसको प्रैक्टिस करें, ऐसा कुछ कर बिल्कुल। आप लोग सब लोग जो है ना, ये जो है पूरे टीम का जो है इफेक्ट ऑफ योगा ऑन अर्थराइटिस, ये पूरे टीम का होमवर्क है। आप लोग जब भी सर्च कीजिए इस टॉपिक पे सर्च कीजिए और देखिए कि उसमें ना एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कौन कौन सा क्वेश्चन यूज किया है रिसर्चर ने। ठीक है, अर्थराइटिस पे पूरी टीम काम कीजिए। एक आपका मतलब एक टॉपिक पे अगर आपका सारा कुछ क्लियर हो गया ना तो दूसरे टॉपिक को करने में आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, मैं आधा जब मुझे लगेगा कि आपका वेरिएबल्स क्लियर हो गया, आपका सैम्पलिंग क्लियर हो गया, जब मुझे लगेगा कि आधा आपने पढ़ लिया रिसर्च, तो फिर मैं आपको रिसर्च प्रपोजल का फॉर्मेट दूंगी। तो अभी से आप लोग लेकिन सर्च करना शुरू कर दीजिए। नहीं भी समझ में आता है, हम लोग को भी शुरू में जब हमने रिसर्च स्टार्ट किया था तो मुझे कुछ नहीं समझ में आता था, बहुत बोरिंग लगता था, नींद आती थी, कुछ भी नहीं समझ में आता था कि क्या है। ठीक है, लेकिन फिर बाद में जब समझ में आना शुरू हो गया तो वही बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगा। तो सबसे पहले है कि आपको उसमें ना अपना मतलब उसमें आपको अपना इंटरेस्ट जगाना होगा। जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं आएगा तब तक आपको फिर मजा नहीं आएगा करने में। अभी आपको नहीं भी आता है तो भी पढ़िए, एक वर्ड भी जो है ना, और अच्छे रिसर्च पेपर जिसके साइटेशंस मैं बताऊंगी आपको कैसे इसको सर्च करना होता है। अभी टाइम रहता तो मैं अभी ही बता देती आपको। चलिए 3 to 4 किसी की क्लास है? प्रैक्टिकल
अच्छा प्रैक्टिकल क्लास है, ठीक है कोई नहीं। तो कल मैं बताऊंगी कि सर्च कैसे करते हैं, तो आप जब भी फ्री हो तो आप सर्च कीजिए, ठीक है। और क्या कौन से पेपर अच्छे पेपर कैसे पता चलता है, वो सारा कुछ कल मैं बता दूंगी आपको प्रैक्टिकल, ठीक है। तो आज मैम, हाँ बताइए। मैम क्या पीएचडी इंटरव्यू में ये पूछते हैं कि आपने क्या रिसर्च किया है, कौन सा पेपर आपने पब्लिश कराया है, ऐसा कुछ पूछते हैं क्या? हाँ पीएचडी रिसर्च में क्या पूछते हैं? इंटरव्यू, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम का इंटरव्यू होता है, तो क्या उसमें पूछते हैं क्या, मतलब ये रिसर्च के आपने पेपर पब्लिश कराया या नहीं, ऐसा कुछ? हाँ बिल्कुल नहीं ऐसा कुछ आप, ये पीएचडी में होता है, ठीक है। अभी नहीं पूछेंगे आप, मतलब ये सब जब आप पीएचडी हो जाएगा, बहुत लोग जो है मास्टर्स में भी करवाते हैं पीएचडी रिसर्च। जब आप इंटरव्यू देते हैं तो उसके लिए पूछते हैं कि आप किस रिसर्च पे करना मतलब किस टॉपिक पे करना चाहते हैं, इस टॉपिक पे करना क्यों चाहते हैं आप, रिसर्च क्यों करना चाहते हैं। वो सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, ज्यादा कुछ इस तरह का नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन जो है ठीक है दिशा रक्षित, ठीक है कोई नहीं। तो आप जो है इन सब चीजों पे रखिएगा ध्यान, जो क्योंकि आपसे रिसर्च पूछा जाता है उस समय, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कुछ सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको उसके लिए भी रिसर्च की तैयारी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। और क्लासेस में पंक्चुअल रहिएगा, क्लास में छुट्टी मत कीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा रिकॉर्डिंग के बदला आप लोग अभी जो लाइव क्लासेस होती है उस क्लास को ही अटेंड करने के लिए, क्योंकि रिसर्च एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, क्लासेस छूटेगी तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ओके मैम। ठीक है चलिए, तो फिर कल हम इस टाइम पे रखेंगे 2 से 3। और अभी किसकी क्लास है, मैम आ गई है सर या मैम? मैम अभी 3 to 4 नहीं है, 4 to 5 है। अच्छा 4 to 5 है। यस। अच्छा ठीक है चलिए, तो अभी तो क्लासेस टाइम खत्म हो गई है, तो कल मैं आपको रखिएगा याद, कल सबसे पहले आपको गूगल स्कॉलर पे सर्च करना बता दूंगी, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके।